So, good morning, all of you. So, let us understand electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. तो जो लोग एब्सेंट है प्लीज जरा उनको हिलाओ, जगाओ जरा उनको. So the first reaction is chlorination. Chlorination. So the reaction is taking place like this way. Cl2 react with FeCl3 or AlCl3, so that FeCl3 break this chlorine in this format, Cl plus and FeCl4 minus. Okay, now this Cl plus is going to attack on benzene, correct? It is going to attack all hydrogen atoms are equivalent, so any one hydrogen atom can be replaced. So I'll write Cl plus, so it will attack here, here, anywhere. When it attack here, this electron pair shift over here. So the structure will be what? What is the structure? Double bond here, double bond here. Here we have a H which is already present, chlorine, positive charge. And I told you last time, this is arylium ion which can be stabilized by resonance. एक बार वापस ये देखो stability. So जब भी तुम लोग कार्बोकटायन और कार्बन आयन बनाते हो, you should able to explain its stability. और हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, इंडक्टिव इफेक्ट देखा. बस ये जो इफेक्ट है ना, ये इसके लिए यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है. जब मैं बोलता हूँ पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, which means the stability increases. ओके, तो ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, and this is your resonance hybrid structure. So it is like this way. Draw it properly. तो ये क्या है? Positive charge. So this way the positive charge is delocalized. Now what will happen in the next step? बस मैं बता रहा हूँ तुम लोग को कि कैसे हो रहा है वो. H and Cl अभी FeCl4 माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा? ये जो CH बॉन्ड है ना, सॉरी, ये जो CH बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. Here we have a positive charge. तो क्या होता है? ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये H प्लस इसके साथ Cl माइनस के साथ चला गया, HCl, right? And FeCl3 we are getting it back. So FeCl3 act as what? Catalyst over here. Okay, and we are getting a structure like this, Cl. This is called as chlorobenzene. क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन. अंडरस्टूड? क्लोरीनेशन लिखो ये. फिर मैं अभी आगे वाले एग्जांपल के लिए, मतलब आगे वाले इसके लिए मैं तुम लोग को ये नहीं बताऊंगा, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मतलब कैसे लिखना है ये बताता हूँ. अगर एग्जाम में तुम लोग को पूछा गया, देन व्हाट शुड यू राइट? यू शुड राइट दिस वे, बेंजीन. देखो ओवरऑल रिएक्शन बता रहा हूँ, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ, जो कैटलिस्ट है वो एरोपेलिक FeCl3 एंड वी आर कोई भी एक हाइड्रोजन, क्लोरीन,
प्लस HCl. इसका नाम लिखना. What is the name of this compound? Chlorovinyl. तो एग्जाम में if they are asking you, you have to write this blue part. Okay, ये this is for our understanding. Note down this. Yes, done everybody. Let us move ahead. Next reaction देखो. Second reaction है bromination. सब लोगों ने लिखा है bromination. Bromination में similar benzene react with bromine in presence of FeBr3. Okay, so that there is the formation of, क्या बताया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, समझे ना, C6H6 बोलते हैं, तो हर एक जगह पे एक हाइड्रोजन है. That hydrogen is replaced by bromine plus HBr. Okay, यहाँ पे न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, Br2 plus FeBr3. That gives you what, Br plus, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, plus FeBr4 minus. ठीक है. थर्ड वन, नाइट्रेशन. नाइट्रेशन, नाइट्रेशन देखो. अच्छा ये क्या है बताओ जरा, व्हाट इज दिस, क्या है ये, देखो ना, HNO2 प्लस O3 हो गया ना, HNO3 हो गया ना, HNO3. करेक्ट. HNO3 का मतलब क्या होता है,
हाँ वैष्णवी, HNO3 स्टैंड फॉर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, करेक्ट। वैष्णवी का आवाज बदल गया था। नाइट्रिक नहीं सर, एसिड, मैंने आंसर किया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नहीं वैष्णवी को पूछा था ना मैंने। हाँ वैष्णवी, बराबर ना नाइट्रिक एसिड। हेलो, HOSO3H, what is this? H2SO4। Sulfuric H2SO, acid. sulfuric acid, correct correct, sulfuric acid, करेक्ट। बाकी लोग, प्रतीक, नमस्कार, विराज, है ना? अभी देखो, यहां से OH माइनस और यहां से H प्लस चला गया, H प्लस OH माइनस gives you what? H2O। H2। क्योंकि यहां से OH माइनस चला गया, what we have now? NO2 plus nitronium ion, this is the electrophile, प्लस आगे क्या होगा? HSO4 minus. Now benzene when react with mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, this mixture is called as, तो ये जो mixture है ना, the mixture of nitric acid and sulfuric acid, this mixture is called as nitrating mixture, nitrating mixture, okay. So क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बताया मैंने तुम लोगों को? व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? NO2 प्लस, तो यहां से H चला गया, so what will be the structure now? We have H plus is replaced by NO2 plus H2O, this is nothing but nitrobenzene, लिखो reactions। चलो next reaction, sulfonation. Next reaction is sulfonation. Fourth reaction, sulfonation. So sulfonation means reaction with sulfuric acid. Sulfuric acid, concentrated sulfuric acid undergo autoprotolysis. Autoprotolysis मतलब ये यहाँ से एक प्रोटॉन और यहाँ से OH माइनस चला गया, so that what we have? SO3H plus, so this is your electrophile, plus H2O plus HSO4 minus. So we are interested in electrophile. Electrophile is an electron deficient species. Nucleophile is electron rich species. पता है ना, मैंने बार बार आता है ये सब चीजें। ऑर्गेनिक में the things will come again and again, again and again, again and again. Okay, electrophile means electron deficient species. Nucleophile means electron rich species. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब H plus is substituted by what? H plus is substituted by electrophile. यहाँ पे क्या होगा? H and OH concentrated H2SO4 heat is required. अच्छा पीछे वाले एग्जांपल में भी हीटिंग इज रिक्वायर्ड है, उसको 373 केल्विन टेम्परेचर चाहिए अप्रोक्सीमेटली. सो यहाँ पे क्या होगा? H plus is replaced by what? SO3 H plus H2O. इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. समझ में आ रहा है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. लिखो. नेक्स्ट वन, that is Friedel-Crafts alkylation. अभी इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तुम लोग को. Friedel-Crafts, name of the scientist. Friedel-Crafts alkylation. This is a very important reaction because that form or that because of this reaction the aliphatic chain can be bonded with the aromatic chain. देखो कैसे होता है रिएक्शन. यहाँ पे हम लोग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल हलाइड लेते हैं. That will react with anhydrous AlCl3. Anhydrous मतलब ड्राई, प्योर नहीं मतलब पूरा ड्राई, पानो पानी. Anhydrous AlCl, no water of crystallization. क्या होगा? R plus carbocation is formed and there is a formation of AlCl4 minus. Now benzene is further attacked by alkyl carbocation so that there is a formation of, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे R. Now this aryl carbocation further attacked by AlCl4 minus. तो उससे क्या होगा? ये इधर आ गया H plus and Cl minus. So जो मैं कर रहा हूँ please do that also. Plus AlCl3. So AlCl3 यहाँ पे क्या हो गया? Catalyst, है ना? And we are getting alkyl benzene. क्या मिलेगा यहाँ पे? Alkyl benzene, right? Alkyl benzene. Please note down. Then we'll discuss the examples also. So let us understand few reactions, few examples. So मैं ऐसे बोलूँगा, what happens? तो पहला क्वेश्चन ऐसा है, what happens when benzene react with methyl chloride? तो कैसे लिखना है? बेंजीन, ये बेंजीन है, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन in presence of anhydrous AlCl. An मतलब AlCl, anhydrous, An मतलब anhydrous aluminium chloride. This H plus is replaced by methyl group. So the structure obtained is called as CH3 methyl benzene. This is the IUPAC name, but it is famous by this name. Don't forget this, toluene. It is famous by this name, toluene plus HCl. Similarly, benzene, when react with ethyl, I can take ethyl bromide also. In presence of anhydrous AlBr3. So the product obtained is what? देखो कहाँ पे CH2 CH3 जुड़ेगा.
CH3 यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, कार्बन का वैलेंस ही गलत हो जाएगा फिर। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल बेंजीन। Similarly, benzene, when react with CH3, CHCl, CH3, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 2-chloropropane nomenclature in presence of anhydrous AlCl3। सो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। I call this as what? Isopropyl benzene. But commercially, trade name इसका है, commercially it is famous by this name, cumene। हाँ, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग इसको यूज करेंगे, क्यूमीन। ओके, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो तुम लोग को ये पूरा रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन गलत, मार्क्स गलत नहीं मिलेंगे। रिएक्शन गलत बट स्टेटमेंट सही लिखा है, 0 मार्क्स। बट रिएक्शन करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट, फुल मार्क्स। ओके, स्टेटमेंट क्या लिखना है, बेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड गिव्स यू मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। राइट डाउन। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, आई थिंक रिएक्शन नंबर 5, फ्रिडल क्राफ्ट acylation. Now acyl group is this RC double bond O. This group is called as acyl group. So क्या होता है देखो रिएक्शन में, बेंजीन react with acyl chloride RC double bond OCl. This is called as acyl chloride. Acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. ओके, सो ये देखो यहाँ पे H है, ये Cl माइनस चला गया, तो दिस गेट बॉन्डेड विद दिस। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, RCO प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप इज योर इलेक्ट्रोफाइल। So what will be the structure we have? We have a structure like this way, C double bond O and R plus HCl. Okay, so I'm taking examples now. So benzene, when react with CH3, C double bond OCl, this is called as acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. So what will be the product? The product is like this way, C double bond O CH3.
plus HCl. Name of this compound is acetophenone. Common name हो गया. IUPAC नेम इसका ये है. IUPAC नेम याद रखना. फिनाइल. फिनाइल इज फॉर दिस. 2 कार्बन है, कीटोन है, सो वी राइट इथेनोन. फिनाइल इथेनोन, ये IUPAC नेम हो गया. ओके, वन मोर एग्जांपल. देखो, बेंजीन when react with CH3, CH2, C double bond OCl, इसको बोलते हैं प्रोपेनाइल क्लोराइड. प्रोपेनाइल क्लोराइड. ओ बाय द वे, इसका मैंने IUPAC नेम बताया नहीं तुम लोग को. एसिटाइल क्लोराइड तो कॉमन नेम हो गया. इसका IUPAC नेम है इथेनॉइल क्लोराइड. इथेनॉइल, दोनों नाम मैं तुम लोग को बता रहा हूँ. This is propenyl chloride. In presence of anhydrous AlCl3. So what will be the product? The product is like this way. C double bond O CH2 CH3 plus what? HCl. Again, इसका common name ही लिख रहा हूँ. Sorry, IUPAC name लिख रहा हूँ. Phenyl. 1, 2, 3. Propanone. 3 है ना? Propanone. Okay, suppose there is a reaction. Benzene, यहाँ पे लिखता हूँ. Benzene when react with C double bond OCl, this is called as benzoyl chloride. क्या ये? Benzoyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. So the product obtained is what? It is like this way. C double bond O और यहाँ पे आ गया ऐसे. हाँ, मतलब 2 बेंजीन जुड़ गए ना थ्रू C डबल बॉन्ड हो, है कि नहीं? ऐसे. दिस इज कॉल्ड एज बेंजोफिनोन. प्लीज डोंट फॉरगेट द नेम. IUPAC और कॉमन नेम एक ही है इसका. बेंजोफिनोन. बेंजोफिनोन. ओके, एसिटो इसलिए CH3CO ग्रुप को एसिटो बोलते हैं. फिनो. ओके, फिनाइल प्रोपेनोन. राइट डाउन. करके देता हूं तुम लोग को रिएक्शन. हाँ, C6H6 plus O2. कार्बन कितने हैं? 6 है, so I put 6 over here. हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, so I should put 3 over here. 6 O2 मतलब ये हो गया 12 O और plus 3 15. So I can write 15/2 here. Okay. Now, what are we going to discuss here onwards? अभी तक जो हम लोगों ने देखा reactions, all those reactions involve mono substitution of benzene, है ना? All those reactions involve mono substitution. Now, what do you mean by mono substitution? One hydrogen atom of benzene is replaced by substituent group. Okay, so मैं general reaction लिखता हूँ. ये है benzene. ये है S. S मतलब substituent. So that we are getting now a substituted benzene. So this is called as what? Mono substituted benzene. Now ऐसा है ना, तो मैं जब बोलता हूं mono substituted benzene, which means what? The other positions are free. Other positions are free. तो अगर समझो मैंने दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रिएक्ट किया, if I react another electrophile,
then depending upon the nature of S, ध्यान से सुना मैंने क्या बताया वो, depending upon the nature of S, the electrophile will attack. मतलब कैसे, we may have three different products, not simultaneously. कैसे देखो, I may have a compound like this way, S E ऐसे रहेगा, और so both are same structure, both are same structure, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड. ऑर्थो इज द दिस पोजीशन, ओके. सेकेंड, ऐसा मिल सकता है प्रोडक्ट मुझे, एस ई, और this is called as meta substituted, meta substituted. And the last one, S and E. S and this is E. This is called as para substituted, para substituted. तो वो कैसे पता करेंगे हम लोग, वही अभी मैं समझाने जा रहा हूँ. देयर आर, बेंजीन में जो मोनो सब्स्टिट्यूट, वो 3 टाइप्स के ग्रुप होते हैं. एक होता है बेंजीन एक्टिवेटिंग, दूसरा होता है बेंजीन डीएक्टिवेटिंग, तीसरा होता है बेंजीन डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ओके, तो I'm just putting a heading now. हेडिंग ये है, इफेक्ट ऑफ a directive influence of functional group in a mono substituted benzene. डायरेक्टिव, देखो ना ऑर्गेनिक कितना डिफिकल्ट है और कितना डेप्थ में है वो. ओके, जो ऑर्गेनिक तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उससे काफी अलग ऑर्गेनिक है, समझ रहे हो. ऑर्गेनिक जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा था, कुछ एक दो चैप्टर थे, एक दो रिएक्शंस थे. नाउ सी द कंसेप्ट हैव चेंज. और उसमें भी कैसा होता है मालूम है, केमिस्ट्री है तो उसमें ये भी रहता है, एक्सेप्शंस भी रहता है, राइट. सो इट इज नॉट सिंपल, ऑर्गेनिक इज वेरी डिफिकल्ट नाउ. ओके, तो अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो अगर समझो एक, मतलब मैंने क्या बताया, 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है. बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप. बेंजीन एक्टिवेटिंग को ऐसे भी बोल सकते हैं प्लस आर और प्लस एम ग्रुप, प्लस आर और प्लस एम. याद करो रेजोनेंस, प्लस आर और प्लस एम ग्रुप विच आर ऑर्थो एंड और O और P, O और P मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. उसमें एग्जांपल्स देखो कौन से हैं. एग्जांपल्स है OH, OR. ओके, मतलब देखो ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, दिस ऑक्सीजन आल्सो कैरीज लोन पेयर. NH2, नाइट्रोजन कैरीज सिंगल लोन पेयर, और NHR, नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NR2, नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, CH3, ओके, और CH2R. ओके, तो जहां जहां पे लोन पेयर रहेगा वो, एंड दैट एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, तो वो क्या रहता है, ऑर्थो
पैरा डायरेक्टिंग होता है बेंजीन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेंजीन एक्टिवेटिंग? बेंजीन एक्टिवेटिंग का मतलब ये होता है, अच्छा, बेंजीन एक्टिवेटिंग का मतलब ये होता है कि वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, बराबर ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें उसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो बेंजीन क्या हो गया, और भर गया, इलेक्ट्रॉन से और भर गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप। विराज गुड मॉर्निंग, भागवे साहब गुड मॉर्निंग, विराज, हेलो विराज, आर्य भागवे, पंडुस्कर गुड मॉर्निंग, हेलो पंडुस्कर, everybody Yes, can sir. hear me? Yes, sir. विराज सो गया था विराज, हेलो क्रिश, मृणमयी गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. सब लोग जाग रहे हैं? चलो यार सब लोग अटेंडेंस दो मुझे। सो बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये है बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब बहुत सारे जिसमें लोन पेयर रहेगा ना, या जिसमें लोन पेयर, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इस पे हो गया, देखो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है मैंने किया, तो मैं ऐसे लिख सकता ना, CH2 माइनस, लोन पेयर आ गया, और H प्लस, या हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इधर भी वैसे ही होगा, मतलब यहाँ पे लोन पेयर दिख नहीं रहे बट वो हिडन है ऐसे थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो such groups are showing plus R effect or plus M effect, and therefore they are benzene activated and ortho para directing। सर थोड़ा और elaborate करो, है ना, मैं करता हूं, देखो। तो उसके लिए ना हम लोग रेजोनेंस, वापस एक बार रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ pi इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैं एग्जांपल ले रहा हूं फिनॉल का, ऑक्सीजन कैरीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोग को रेजोनेंस में, वापस एक बार, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, therefore this pi electron shift on the next carbon, है कि नहीं? तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या होगा स्ट्रक्चर, अभी देखो जो नया स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, वेट अ मिनट, आई विल टेल यू। This oxygen is a trivalent 1 2 and 3, therefore it get positive charge, okay। और ये देखो ये नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, एटम नहीं। रेजोनेंस में न्यू चार्ज क्रिएट नहीं होता। चलिए तो हो गया ना, हाँ, बट देखो होल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ये भी पूरा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल ही है, प्लस माइनस न्यूट्रल। अभी दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रही है, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। सो अभी ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है ना, जो नेगेटिवली चार्ज है। तो मुझे बताओ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा, बराबर कि नहीं? ओके, जब बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आता है, बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आता है, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, देयरफॉर OH ग्रुप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी देखो नेगेटिव चार्ज किधर आया, इसके पैरा पोजीशन पे, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इसके पैरा पोजीशन पे, वापस देखना, अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एरोज को अच्छे से करना बस, और कुछ नहीं, जैसे मैंने एरोज किए वैसे ही करना। सो वी हैव डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस, here we have a negative charge, okay, double bond, which means अगर मैंने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखा, तुम लोग ढंग से लिखना उसको, एक लाइन में ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, OH, ये देखो यहाँ पे भी डी डॉटेड लाइन, ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, अभी नेगेटिव चार्ज किधर है, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर व्हाट शुड आई राइट,
OH group is benzene activating group. Why benzene activating group? Because negative charge is created on the benzene ring. Okay, OH group is a benzene activating group. Electrophile, इसको phenol बोलते हैं. This, the name of this compound is phenol. So electrophile will attack at ortho and or para position. समझ में आया? यस. समझो मैंने टॉलिन लिया. टॉलिन ये एक एग्जांपल हो गया. हाँ, टॉलिन लिया. अभी ऐसे तुम लोग हर एक इसके लिए करके दिखना, तुम लोगों को पता चलेगा. ये टॉलिन है CH3. देखो ध्यान से देखना. तो इसका एक क्या लिखूंगा मैं? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर. व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? CH2 माइनस. याद आया? और H plus, ऐसे it hang on. So this electron pair shift over. These are all imaginary structure. किसी ने ये देखा नहीं. It's all imagination. Now why we need imaginary structure? To explain कि some benzene monosubstituted में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है और कुछ में वो मेटा पे. क्यों? तो वो बताने के लिए. ओके, तो ये भी मैं ऐसे लिखूंगा स्ट्रक्चर को. जरा यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2. दिस H प्लस रिमेन हैंगिंग. यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड. यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड. आगे क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट ओवर हियर. ये इलेक्ट्रॉन एरोस को ध्यान से करना. हाँ, लैंग्वेज को समझना. इसलिए ना NCERT का टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है. थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इट इज गिवन इन अ वेरी गुड लैंग्वेज. ओके, ये देखो लास्ट 2 साल से NTA मतलब JEE मेंस पे जो क्वेश्चंस है दे आर कमिंग फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक स्ट्रेट अवे. और अपना जो टेक्स्ट बुक है वो NCERT की कॉपी है, डिक्टो कॉपी है. सो आइदर यू रीड NCERT बुक और you can read स्टेट बोर्ड बुक ऑल्सो. ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर जाएगा वापस. सो कैन यू सी नेगेटिव चार्ज किधर आ गया? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ गया, है ना. तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बता देता हूँ. डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया. अंडरस्टूड? यस. So can you draw this? Please draw this in a proper way. Phenol लिखना, टॉलिन तुम लोग बाद में लिखना, घर पे लिखना. ठीक है? ये मुझे कल का और आज का नोट्स मुझे शेयर करना है तुम लोग के साथ. Second is benzene deactivating. The name itself suggests कि वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे. Deactivating group. Benzene deactivating groups. Okay. Benzene deactivating groups which are showing minus R effect, minus R or minus M effect, minus resonance, minus mesomeric effect, minus resonance, minus mesomeric effect, and they are meta directing. They are meta directing. Example: NO2, nitro group,
CHO aldehyde, C double bond O carbonyl, C triple bond N cyanide, C double bond OOH carboxyl, C double bond OOR ester, C double bond ONH2 sorry amide. Okay, C double bond OX halide acid halide, C double bond OC double bond anhydride. Okay, then NH3 plus ammonium ion etc. तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये छोड़ दिया ना तो बाकी सब में पाई बॉन्ड है, देखो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये CHO भी C डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है, सब में पाई बॉन्ड है, इवन NO2 में भी पाई बॉन्ड है। देखो कैसे मैं नाइट्रो ग्रुप ही कंसीडर कर रहा हूं। ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन, N डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4, सो नाइट्रोजन गेट पॉजिटिव चार्ज, सो नाइट्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज। देखो ये पाई बॉन्ड है उसके साथ। अभी इसका व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस O माइनस शिफ्ट ओवर हियर सो दैट ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। देखो ना कैसे आ गया, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना उसने। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर नाउ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? देखो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N, here we have a O minus, here we have a O minus, here we have a plus charge, right? And now therefore this carries positive charge, double bond double bond. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया। एरोज देखना, एरोज चार्जेस देखना, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक on ortho as well as para position. Electrophile cannot attack at ortho and para position. Okay, electrophile cannot attack at ortho and para position. तो उससे रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा है? बेटा देखो ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। आई विल ड्रॉ दैट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वत्सल समझ रहे हैं? यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो। तो देखो मेटा पोजीशन जो है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? एट मेटा पोजीशन। सिंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, therefore electrophile cannot attack at these positions. Okay, therefore meta substituted product is obtained in this reaction. Understood? Clear हो गया ये part? और basically these are less reactive than these compounds. Okay, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, these compounds are less reactive
than benzene. ओके, और यहां पे लिखो these compounds are more reactive, obviously, towards electrophilic substitution reaction, more reactive than benzene. ये भी लिख लेना यहाँ पे, and that part also लिख लो. So now the third type of group benzene deactivating, but ortho and para directing. Such groups are showing minus I effect, negative inductive effect, permanent polarization of electron, showing negative inductive effect, but plus R or plus M effect, they are ortho and para directing. इसमें एग्जाम्पल है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीन ही है हैलोजन. सो देखो अभी सब लोग, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस sp2 कार्बन, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. दैट मींस इट इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव. बट अगर मैं प्लस आर की बात करूं तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट ओवर हियर एंड दिस विल शिफ्ट ओवर हियर. सो इसका रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होगा, बट वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. Okay, so here what we have a structure? We have a structure double bond Cl plus charge here. There is a negative charge, double bond, double bond. This electron pair shift over here. This will shift over here. So what will be the structure? क्या structure रहेगा? Here we have a negative charge, double bond, double bond, double bond Cl plus charge chlorine पे. देखो अल्टीमेट चार्ज मॉलिक्यूल पे 0 है. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट ओवर हियर, ये इधर आ गया. हमने बताया था ना ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रीच हो गया. इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट व्हिच पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ओके, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल will attack at ortho and para position, but इनका रिएक्टिविटी वो ग्रुप 1, मतलब ये ग्रुप 3 है ना, ग्रुप 1 से कम रहेगा. ओके, हाँ ऑब्वियसली ग्रुप 2 से ये लोग ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे. सो ऐसे लिखता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे रहेगा? ग्रुप 1 मतलब कौन सा? पहला वाला. ग्रेटर देन ग्रुप 3, ग्रेटर देन ग्रुप 2. अंडरस्टूड? ग्रुप 1 मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड बेंजीन एक्टिविटी. ग्रुप 3 मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट बेंजीन डीएक्टिविटी. ग्रुप 2 मतलब मेटा डायरेक्टिंग एंड बेंजीन डीएक्टिविटी. अंडरस्टूड? यस, इधर चाहिए तो मैं लिख देता हूं. ग्रुप 1 ऑर्थो पैरा एंड एक्टिविटी. ग्रुप 2 मतलब मेटा एंड डीएक्टिविटी. ओके, देन ग्रुप 3
ऑर्थोपैरा एंड डीएक्टिवेट। ठीक है, ये लिख लो। यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो गया। ये उसके यूजेस है, वो यूजेस हम लोग, यूजेस मतलब कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ बेंजीन। आजकल ना इसके ऊपर भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। So let us see this one last point, carcinogenicity and toxicity. Benzene is both toxic and carcinogenic. Carcinogenic मतलब cancer causing. In fact, it might be considered the mother of all carcinogens, as a large number of carcinogens have structures, those including benzene ring. Several polycyclic aromatic compounds containing more than 2 fuse ring structure, naphthalene, anthracene, वगैरह are produced by incomplete combustion of tobacco, coal, and petroleum. In liver, benzene is oxidized to an epoxide. Benzopyrene is converted into an epoxydiol. These substances are carcinogenic and can react with DNA, which can induce mutation leading to uncontrolled growth of cancer cell. That's it. यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो गया. So please read it from both NCERT as well as from textbook. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग को जेई मेंस में और सीईटी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो पहले टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते. वो तभी समझ में आएंगे जब तुम लोग का ये लैंग्वेज समझ में आएगा. डोंट बाय हार्ट एनीथिंग, रीड इट 4 times 5 times. इट मे टेक, मतलब ऐसा है ना कि पहली बार पढ़ते पढ़ते नींद आएगा तुम लोग, नो प्रॉब्लम. पेंसिल हाथ में रखना और उसके बाद देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बीच बीच में, उसको ड्रॉ करना, उसको देख. इसको क्या पढ़ोगे बताना. कैन यू रीड दिस? यू कैन नॉट रीड दिस, यू हैव टू ड्रॉ इट. सो ड्रॉ सच स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो. ओके, दिस इज द ओनली वे टू ओवरकम, टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, तो अभी 2 चैप्टर अपने बच गए. एक चैप्टर है थर्ड चैप्टर और दूसरा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ओके, तो जो तीसरा चैप्टर है वो आज शाम को मैं डील करूंगा. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए मैं बीच में एक कभी भी लेक्चर लूंगा. वो भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट वी हैव टू डिस्कस दैट आल्सो. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.